Okay, so let's do few more numericals of electrostatics, and then we will close this chapter. Three equal charges of 10 into 10 power minus 8 coulomb respectively, each located at the corners of a right angle triangle whose sides are 15, 20 and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge located at the 90-degree angle. Easy question है, अच्छा question है. So let's solve this question. Okay, so what we have is a right angled triangle with sides 15, 20 and 25 सेंटीमीटर. मतलब ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 है और ये 25 है. लेट्स से A, B and C. तो on each of the vertex you have three equal charges of 10 into 10 power minus 8 कूलम, मतलब 10 power minus 7 कूलम. और हमको ये देखना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट बी, मतलब चार्ज एट राइट एंगल दैट इज बी. तो व्हाट वी कैन डू इज, ये एक फोर्स हो गया, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ये एक फोर्स हो गया दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, राइट. तो ऐसा है. तो this is force on B due to C. This is force on A, sorry, on B due to A. So force on B due to A. इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा in this direction. So you will have resultant in this particular direction over here. So this is resultant of FBC and FBA. तो अगर आप वेक्टर से रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता है और देन यू हैव टू ऐड इट. इन एनी वेज you know how to find out resultant of two vectors. So first of all, what is given to us is, हमने कल भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, आज वापस कर रहे हैं. We have been given charge at A, charge at B and charge at C. These are 10 power minus 7 coulomb because 10 to 10 power minus 8 is 10 power minus 7 coulomb. Distance between AB is 20 centimeter, मतलब 20 into 10 power minus 2 meter, and distance between BC is 15 centimeter, मतलब 15 into 10 power minus 2 meter. Correct. Okay. So if you want to find out what is total force on B, you must know the formula for that, and that is easy. Formula for total force on B, this is vector sum of force on B due to A plus force on B due to C. And I want to find out magnitude, क्योंकि आंसर में magnitude ही है बेसिकली. तो मॉड आप कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए. अंडर रूट ऑफ FBA square plus FBC square plus 2 times of FBA FBC into cos of 90, because the angle between the two forces here is 90. So I'm not going to write down that because we don't want to waste our time in doing that. दो forces अगर perpendicular है तो you know that it is just under root of first force का square plus second force का square. Right? We are not going to waste our time at all. So let's
फाइंड सॉल्यूशन और इजी है. फॉर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज बीइंग लेजी. मैं 1/4πε0 बार बार नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कैपिटल के. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कैपिटल के. 1/4πε0 को कैपिटल के भी बोलते हैं. डोंट कंफ्यूज दिस विथ dielectric constant, that is small k. So capital K, Q1 Q2 मतलब charge at A, charge at B upon distance between AB square. You should know this capital K which is 1/4πε0. इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 power 9. Charge at A and charge at B both being same, तो 10 power minus 7 का square upon distance between AB का square. Distance between AB is 15 centimeter. उसका distance between AB is 20 centimeter. उसका square आएगा 20 into 10 power minus 2 का square. तो ये आपको मिल जाएगा 9 into 10 power 9 into 10 power minus 14 upon 2 into 10 power minus 1 का square, 2 into 10 power minus 4 into 10 power minus 2. इजी है. ओके तो ये आपका आ गया ओवरऑल. ये ऊपर जाएगा तो 10 पर माइनस 14 प्लस 11 इज -3. 9/4 इज 2.25. तो 2.25 इंटू 10 पर -3 न्यूटन. दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू A. Similarly, you can find out what is force on B due to C. That is again K QB QC by RBC square. K value is 9 into 10 power 9. QA QB are same, 10 power minus 7 का square upon RBC is 15 into 10 power minus 2 का square. तो 225 into 10 power minus 4 हो जाएगा वो. So you have to solve this. इसको solve करो. After solving this, you will get. This is easy if you know. Of course, ये easy कैसे है? Because 225 into 4 is 900. तो you have to understand that कि आपने क्या करना, आपने ये दो पावर एडजस्ट कर लेना. यहाँ पे 2.25 बना लेना. 1 जा एंड 4 जा, बाकी तो सारे के सारे पावर एडजस्टमेंट में होंगे. ऊपर है 9 और -14 -5 और नीचे है -2, ऊपर जाके प्लस होगा तो 4 into 10 पावर -3 आएगा न्यूटन में. दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू C. ओके तो टोटल फोर्स हमको निकालना है. और टोटल फोर्स आप कैसे निकालते हो उसका फॉर्मूला हमने पहले ही डेवलप करके रखा है. सो दैट फॉर्मूला इज टोटल फोर्स ऑन B is equal to under root of FBA square plus FBC square. We know what is BA, we know what is BC. तो बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको. और दोनों में 10 पर -3 है तो वो कॉमन भी निकलेगा. तो 2.25 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 पर -3 के स्क्वायर के साथ, मतलब 10 पर -6 के साथ. एंड सिंप्लीफाइंग दिस you will ultimately get 4.589, roughly 4.6 into 10 power -3. So 4.589 into 10 power -3 Newton. So answer in this case is correct. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. आपको सिर्फ ये देखना था that force on B is due to force on B due to A plus force on B due to C. That is total force on B. Or FBC or FBA, they are perpendicular to each other. So resultant is under root of FBA A square plus FBC square. That's it. And you know how to find out FBA and FBC. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है गलती से, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दैट.
Next question. This is again a easy question. Okay, so by the way, everything is easy, nothing is difficult. So potential difference of 5000 volt. So you have been given capital V as 5000 volt is applied between two parallel plates 5 centimeter apart. So you have distance between two plates as 5 centimeter. Okay, a small drop, oil drop having a charge 9.6 into 10 power minus 19 कूलम falls between the two plates. तो हमारे पास दो प्लेट्स थे, इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस और इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है V और डिस्टेंस है दोनों के बीच में D. इसमें एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप गिर गया, तो हाउ मच फोर्स दैट ऑयल ड्रॉप विल एक्सपीरियंस ये पूछा होगा. देखो होगा फाइंड ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप दिया है आपको 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम और आपको फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, ये पूछा है. दूसरा आपको पूछा है द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप F. राइट, so formulas are very simple. First, you know electric intensity is just potential difference upon distance between the two plates. Then you know force on the oil drop is nothing but electric intensity into charge on the oil drop. ये हमने देखा था, F is equal to Q into E, वही किया है, F is equal to Q into E. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. So part 1, E is equal to V by D. So that is 5000 by 5 into 10 power minus 2. तो ये आपका आ गया E is equal to 1 जा एंड 1000 जा, मतलब 10 पावर 3 इंटू 10 पावर प्लस 2, मतलब 10 पावर प्लस 5 वोल्ट पर मीटर. B is force on the oil drop is equal to E into Q0. So this is again simple thing. E is 10 power 5 and Q0 is just 9.6 into 10 power minus 19, मतलब it is just 9.6 into 10 power minus 14 coulomb. Okay, so simple, extremely simple question. दोनों ऑप्शन उन्होंने करेक्ट प्रिंट किए हैं, so we are fine with it. Next question. Calculate the electric field due to a charge of minus 8 into 10 power minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. Calculate electric field. So you have been given charge minus 8 into 10 power minus 8 coulomb. You have been given distance 5 into 10 power minus 2 meter. You're supposed to find out electric field. You know this is a simple question already because you just need to remember what is the formula of electric field. That is 1 by 4570, मतलब K बोलता हूँ इसको मैं normally, Q by R square. So solution is simple. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 into 10 raised to 9, चार्ज की वैल्यू minus 8 into 10 raised to minus 8 अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू 5 into 10 power minus 2 का स्क्वायर. So this is equal to minus 72 into 10 upon 25 into 10 power minus 4. बस इसको सॉल्व कर लो तो minus 1.8 into 10 power plus 4 आ जाएगा ये न्यूटन पर कूलम. You have to solve this.
एग्जैक्टली क्या आता है, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। -72/25 इज 1.8 नहीं आएगा ये, इट्स नॉट गोइंग टू बी 1.8, it's again something is wrong, so it's going to be 72/5, it is going to be -2.8, -2.88। तो टेक्स्ट बुक में गलत से प्रिंट हुआ है और 10^4 भी नहीं आएगा, 10^5 आएगा कि -4 ऊपर जाएगा, तो दिस इज रॉन्गली प्रिंटेड। So this is what you have. Okay, so this is the end of your electrostatics, but I am going to take few extra questions, and since this type of questions may appear as MCQ, पहले इस लेवल के MCQ मैंने कभी टेक्स्ट बुक में देखे नहीं थे, ना ही इस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग ले रहे हैं वो देखे थे, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड seeing some good questions in textbook, so I'm taking some good level of MCQs also. So let's start with this particular MCQ. Okay, so a charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. हमारे पास एक स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं, and remember this kind of questions do appear in NEET, JEE and CET exams. A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. तो कोई भी दो corners पे, opposite corners पे capital Q को रख दो. Let's keep one capital Q here and let's keep another capital Q over here. मैं कुछ नाम दे देता हूँ, some names A, B, C and D. A charge small q is placed at each of the other two corners. मतलब यहाँ पे जाएगा आपका चार्ज स्मॉल q और यहाँ पे भी आएगा स्मॉल q. If the net electric force on capital Q is 0, मतलब A और C में से जो कैपिटल Q चार्ज है उन दोनों में से किसी भी एक पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या आएगा? तो इजी है, सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन, लेट अस से हम लोग ए ले लेंगे, ए लो या सी लो बात एक ही है, यू कैन टेक एनी ऑफ द कॉर्नर्स वेयर कैपिटल क्यू इज केप्ट, सो आई टेक ए। सो ए पे एक फोर्स है बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी, मतलब ये, और कौन सा फोर्स है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट डी। So these are the forces acting, हमने already किया है ये. So this is force on A due to B. This is force on A due to D. इन दोनों का resultant जो होगा, resultant of these two will be along this direction again, FR, which is resultant of FAD plus FAB bar. And then you will have one more force here, which is force on A due to charge at C. हमने ये ऑलरेडी किया है. Then total force on A is equal to force on A due to C plus FR, where FR is force on A due to B plus force on A due to D. करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो सारे फोर्सेस फाइंड कर लेंगे.
राइट। और ये मैं मॉड लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, दिस इज मॉड वैल्यू। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ओके, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू D, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। वाई इक्वल? क्योंकि दोनों एक स्क्वायर के साइड्स वर्टेक्स पे है, तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है। तो इट इज कैपिटल के, क्योंकि आई डोंट राइट 1/4πε0, आई एम लेजी। कैपिटल के, Q1 Q2 B पे Q और A पे कैपिटल Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, फोर्स बिटवीन वर्टेक्स A एंड B इज 1/4πε0, जिसको मैंने कैपिटल के लिखा है। चार्ज ऑन A इंटू चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन A इज कैपिटल Q, चार्ज ऑन B स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मैं FAD निकालूंगा तो FAD भी तो वही आने वाला है, क्योंकि एक वर्टेक्स पे स्मॉल q है, दूसरे वर्टेक्स पे कैपिटल Q है और डिस्टेंस A है। तो FAD और FAB का मैग्नीट्यूड सेम होगा। Therefore, resultant FR AB, force on A due to B and force on A due to D, they are perpendicular to each other. इसलिए FR आप लिखोगे FAB square plus FAD square, because they have 90 degree between them, so 2 times of FAD into FAB into cos of 90, cos of 90 is 0, तो ये आपको मिल जाएगा FR is equal to FAB और AD इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ FAB स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ FAB, मतलब ये सिर्फ आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ K small q capital Q by A square. Similarly, you can find out what is force on A due to C. That is, वो कब आएगा? जब आपको पता होगा कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ A आता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो FAC इज K Q1 Q2, A पे कैपिटल Q, C पे भी कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस रूट 2 A का स्क्वायर हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, राइट। Therefore, total force on A is just addition of force on A due to C plus resultant force on A due to B and D, क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। लुक एट द डायग्राम, FAC and FR, which is resultant of AB and AB, have same direction, तो सिंपल एडिशन होता है। और आपको बोला है कि टोटल फोर्स जो है 0 है, 0। टोटल फोर्स ऑन A is 0 according to the given question. Since FA equal to 0, which is a given condition, देखो बोला है यहाँ पे net electrical force on charge Q is 0, तो 0। तो 0 equal to what is FAC? Capital K Q square by 2A square plus what is resultant force due to B and D? FR क्या है? अंडर रूट 2K कैपिटल Q into small q by A square. So 0 is equal to, क्या क्या कॉमन आएगा? K कॉमन आएगा, Q कॉमन आएगा, अपॉन A स्क्वायर कॉमन आएगा, राइट। K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पे आया 1/2, ओके, Q by 2, क्योंकि K Q कॉमन निकला, Q स्क्वायर नहीं, तो K Q by A स्क्वायर कॉमन आया, तो Q by 2 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, right? Okay, so this is how you will be solving this question. Just a minute, we are yet to finish the question and we'll do it very soon. Okay, तो अब ये पूरा फैक्टर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा, मतलब you will have capital Q by 2 plus under root of this equal to 0,
मतलब you will have capital Q by 2 is equal to minus under root of 2 into Q. Therefore you will have capital Q by small q is minus 2 root 2. है क्या minus 2 root 2? Option number A. Right. So this is how you will be solving this question. So effectively you have solved a JEE level question. Easy था. It's a very simple thing. तो the question in hand is, हमको करना क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान होना चाहिए. हमारे पास एक स्क्वायर है, जस्ट अ मिनट. हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के वर्टाइसेस पे, चारों वर्टाइसेस पे यू हैव अ फोर्स, you have charges. Sorry to say force. Let me keep it aside for the time being, just for the time being, because I want to get rid of few things. So let me get rid of few things. Just a minute. Yep. एक मिनट दे दो सिर्फ. Okay. All right. Now it's okay. Right. So you have a square. स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टाइसेस पे कैपिटल Q चार्ज है और दो अपोजिट वर्टाइसेस पे स्मॉल q चार्ज है. हमको बोला गया है कि कैपिटल Q चार्ज पे, मतलब दोनों में से किसी भी एक कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स की वैल्यू 0 होने के लिए कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशो क्या आना चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट ले लेते हैं, ए वर्टेक्स ले लेते हैं. ए वर्टेक्स पे कैपिटल Q चार्ज है, उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि बी यहाँ पे कहीं था. और कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी यहाँ पे कहीं था, ऐसा था वो. करेक्ट. अब द थिंग इज, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इफ यू एज यू कैन सी, दीज टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब डायगोनल के डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एफ आर. वो कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी या डी. डी पॉइंट है यहाँ पे, हियर वी हैड डी पॉइंट, सो सॉरी फॉर यूजिंग सम अदर नेम. तो there is one force FAD, there is one force FAB. So resultant force of these two forces कहाँ जाएगा, along the diagonal. क्यों, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है. तो resultant of FAD and FAB is along the diagonal. Okay, right. How do you find out magnitude? FAB square plus FAD square plus 2 times of FAB FAD cos of 90 का स्क्वायर रूट. लेकिन cos of 90 जीरो होता है, इसलिए आपको सीधा सीधा मिलेगा ये इक्वेशन. राइट. फिर मतलब इसमें FAB और FAD ये फोर्सेस निकालने पड़ेंगे. FAB और FAD इक्वल है. क्यों इक्वल है, क्योंकि फोर्सेस किस पर डिपेंड करते हैं. देखो, ये B पॉइंट था, इस पे स्मॉल q चार्ज है, यहाँ पे D पॉइंट था, इस पे भी स्मॉल q चार्ज है. ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है. राइट. फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे. तो जब मैं A पॉइंट पे कैपिटल Q फोर्स है उस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, A पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज है, मैं उस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फोर्स at A due to B will be some constant capital K, Q1 मतलब small q, Q2 मतलब capital Q
अपॉन डिस्टेंस मतलब a का स्क्वायर, तो कैपिटल K स्मॉल q capital Q by a square. This is force on A due to B. Similarly, force on A due to D will be capital K, charge on D which is small q, charge on A which is capital Q upon A square which is distance between them. मतलब FAB और FAD मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, लेकिन डायरेक्शन वाइज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए हमने ये रिजल्टेंट लिखा था FR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FAB स्क्वायर प्लस FAD स्क्वायर, राइट। अब FAB और FAD इक्वल होने की वजह से आपको मिलेगा ये इक्वेशन FAB स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ FAB स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2 FAB. If you don't understand this, so I will have to try reasoning here, and reasoning is pretty simple. Since FAB and FAD are equal, इसलिए करेक्ट, तो हमको मिल गया FR, लेकिन हमने पॉइंट सी पे जो कैपिटल Q चार्ज है इसका भी तो फोर्स अलोंग डायगोनल होगा अवे, बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, तो ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू C. Now force on A due to C and FR, they are in the same direction. When two vectors are in the same direction, you just add those two vectors to have resultant. Okay, good. तो हमको FAC निकालना पड़ेगा. FAC is again capital K, which is 1 by 4 pi epsilon 0. Charge on C, which is capital Q. चार्ज ऑन A which is capital Q, तो Q into Q, Q square लिखा है मैंने वहां पे Q square. I have written there Q square. If you want to see, you can see Q square is there, right? So there's Q square over here. Then upon distance square, but what is distance between C and A? It is diagonal of a square, मतलब under root 2 times of A है ये, उसका square करेंगे तो 2A square. फिर फाइनली टोटल फोर्स ऑन A is FAC plus FR. ओके, टोटल फोर्स इज गिवन टू बी 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. 0 बोला है तो 0 बोल दो, दोनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, कैपिटल Q बाय स्मॉल q आपको मिल जाएगा -2√2. सिंपल, डन. तो खत्म, देयर इज नथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल स्मॉल आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टू स्मॉल आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग चार्जेस +10 and -90 microcoulomb attract each other with a force F Newton. If they are kept in contact then and then separated by the same distance, the new force will be. पहले केस 1 ले लेते हैं. केस 1 में चार्ज ऑन फर्स्ट sphere was 10 microcoulomb, charge on second was -90 microcoulomb, force F1 between the two was F, let us say distance R1 between two was R मान लेते हैं. और आइडेंटिकल स्पीयर, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिकल स्पीयर का मतलब ये होता है दैट बोथ स्पीयर्स हैव सेम डायमेंशंस, सेम रेडियस. ये दोनों के दोनों पहले R डिस्टेंस पे रखे थे, R1 डिस्टेंस पे मतलब R डिस्टेंस पे, फिर इन दोनों को टच कर दिया. सो लेट मी जस्ट देन sometimes this acts so weird, right? फिर इन दोनों को टच कर दिया. अब टच करने से क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस हियर. पहले केस में फोर्स लिख लेते हैं. पहले केस में फोर्स आपके पास आएगा F इज इक्वल टू
capital K, which is 1/4π0, charge on 110 microcoulomb minus 6 minus 90 microcoulomb upon square of the distance between them, right? Good. Okay, I can give you a shortcut here because बताता हूं क्यों. I can say force in the case 1 is Q1 Q2 by R square into capital K, right? ऐसा बोल देंगे, वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे. अब केस 2 में हमने क्या किया है, केस 2 में हमने दोनों स्फीयर को टच किया है, ये इंपॉर्टेंट है. टच करने के बाद व्हाट इज टोटल चार्ज Q हियर, Q1 प्लस Q2, मतलब 10 माइक्रोकूलम माइनस 90 मतलब माइनस 80 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया अब टच करने की वजह से. अब टच करने के बाद वापस सेपरेट कर दिया आपने और आपने सेम डिस्टेंस पे रखा है, मतलब यू आर नॉट चेंजिंग डिस्टेंस एट ऑल, राइट? ओके, तो राइट, तो इस केस में भी r डिस्टेंस होगा और दूसरे केस में भी r डिस्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टच करने के बाद आपने वापस सेपरेट किया और वापस सेम डिस्टेंस पे रख दिया. but here you have charge Q1 dash and charge Q2 dash. Now what will be charge Q1 dash and Q2 dash? It will be 40 microcoulomb with a negative sign on each. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो बात ऐसी है, पहले एक पे 10 माइक्रोकूलम था, एक पे था -90, राइट? फोर्स था F. अब टच कर दिया, टोटल चार्ज हो गया -80, फिर सेपरेट किया तो एक बॉल, एक स्पीयर -40 लेके जाएगा, दूसरा -40 लेके जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ व्हाट यू कैन से इज F is proportional to Q1 Q2 only. Why? Since capital K and R both are constants, क्योंकि डिस्टेंस आपने सेकेंड केस में भी सेम ही रखा है, राइट? गुड. तो ये अगर आपको पता होगा देन क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व. अगर नहीं पता होगा देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. फिर आप वैल्यूज कैलकुलेट करते बैठोगे, टाइम पास होगा आपका, और ये एमसीक्यू टाइप है, टाइम पास नहीं करना हमने, राइट? तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, राइट? तो क्या होगा, अभी न्यू फोर्स क्या निकालेंगे, न्यू फोर्स पूछा है ना, तो न्यू फोर्स F2 बाय ओरिजिनल फोर्स F1 is equal to, because force is just proportional to charges, so F2 will be proportional to Q1 dash into Q2 dash and F1 is proportional to Q1 into Q2. तो Q1 dash कितना है, -40 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, -40 माइक्रोकूलम, Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है -90 माइक्रोकूलम. पहले तो ये माइक्रो 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 और माइक्रो हटा दो, फिर ये 0 0 0 और 0 हटा दो, राइट? फिर ये साइंस जो आएंगे आपके माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस, राइट? तो 16/9 आ जाएगा. तो F2 by F1 is equal to -16/9, which is equal to F2 is -16/9 times of F. है क्या? है. सिर्फ माइनस क्यों आया? पहले केस में एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरे केस में दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब फोर्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो गया, इसलिए नेगेटिव साइन आया है. दैट्स इट. मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है. हमारे पास आइडेंटिकल स्पीयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. क्यों? हमारे पास 10 माइक्रो था और -90 का टच कर दिया, कितना हो गया टोटल चार्ज, 10 - 90 80 माइक्रोग्राम. अब जब आप सेपरेट कर रहे हो दोनों स्पीयर को, क्योंकि दोनों स्पीयर्स आइडेंटिकल है, सेम रेडियस है, इसलिए दोनों के दोनों स्पीयर इक्वल चार्जेस लेके जाएंगे.
40 and minus 40, एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ तो फिर वैसा नहीं होता, right? If you have one small sphere, one big sphere, then you don't take that both spheres have equal charges, नहीं, because they were identical. पहले स्पीयर ने -40, दूसरे ने -40 लिया, डिस्टेंस वापस से सेम रखा है, मतलब फोर्स विल बी जस्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बिकॉज डिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट. तो फोर्स इन सेकंड केस इज Q1 डैश इनटू Q2 डैश upon r square into k, and in the first case was k Q1 Q2 by r square, दोनों का रेशियो ले लिया, F2 by F1 is Q1 dash into Q2 dash upon Q1 into Q2, -16/9 आ गया. माइनस का एक ही मतलब होता है, वो ये पहले केस में एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. Now both are repelling each other. That is what it means, because both are now negative, right? Next question. Three charges Q0, minus Q are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle. Isosceles में दो sides का length same होता है, right? As shown in figure, the net electrostatic potential energy is 0 if Q0 is 0. सबसे पहले you need to know hypotenuse will be L times of under root 2, first thing. दूसरा, you need to know formula for potential energy, मैंने आपको बताया था, I don't know if you remember or not, मैंने आपको clearly बताया था 1/4 pi epsilon 0 मतलब कैपिटल K summation of all pairs. मैंने ये बताया था आपको कि जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो सारे के सारे पेयर का आप क्या करते हो, यू से ऑल पेयर, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, राइट? यू शुड रिमेंबर दिस. मतलब हमारे केस में ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल K 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. You can solve this question only if you remember formula of potential energy, right? और मैंने if I am not wrong, if I remember, मैंने शायद ये लिया है, नहीं भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर सिलेबस में इस साल के लिए डिलीट किया होगा तो 12th में कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो बस ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला. क्या करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल लेना, मतलब कैपिटल के. फिर जितने भी चार्ज है, तीन चार्ज है, सारे कॉम्बिनेशन Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13, Q2 Q3 by R23. अगर चार चार्ज है तो Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q1 Q4 by R14 प्लस Q2 Q3 by R23 प्लस Q2 Q4 by R24 प्लस Q3 Q4 by R34. 6 टर्म्स आएंगे, उसमें सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं, राइट? आपको बोला है कि ये एनर्जी जीरो है, बोला है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, करेक्ट? तो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q0? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये K को यहाँ शिफ्ट करके जीरो कर लेंगे, राइट? फिर हम लोग Q1 Q2 की वैल्यू डालेंगे, व्हाट इज Q1 माइनस Q, व्हाट इज Q2 Q0, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू देम L, plus Q1 Q3, what is Q1 minus Q, what is Q3 minus Q, distance between them is L root 2. Then Q2 Q3, what is Q2 Q0, what is Q3 minus Q, what is distance between them L, and this whole is equal to 0. Okay, ये सब मिला के 0 है. then it is simple, क्या कॉमन निकलता है, निकाल लो, माइनस कैपिटल माइनस स्मॉल Q by L सब में है. तो पहले टर्म में बचा Q0, दूसरे में बचा माइनस Q by रूट 2,
तीसरे में बचा प्लस Q0, ओके, इक्वल टू 0। ये टर्म वहां जाके आपकी हो जाएगी 0, मतलब आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Q0 माइनस Q बाय रूट 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ Q0 इज इक्वल टू माइनस Q बाय रूट 2, मतलब आपको मिलेगा Q0 इज इक्वल टू माइनस Q बाय 2 रूट 2, ओके। दिस इज नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। तो आपको मिल गया Q0 इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो माइनस 2Q0 अपॉन, नीचे एक 2 था, वापस एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो 4 रूट 2, तो माइनस 2Q0 अपॉन 4 को जब आप स्क्वायर रूट में ले जाते हो तो 16 बना के ले जाओगे, तो 16 इंटू 2, तो ये आएगा माइनस 2Q0 बाय रूट ऑफ 32, ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो this is how you are supposed to solve this question. You just have to know the formula of potential energy.